وہ ہمارا مسیح ہے، اور اس نے یہ ساری قربانی جو صلیب پر دی تھی وہ تو بے گناہ تھا۔ تھینک یو سسٹر، اللہ کو برکت دے۔ قرآن میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ وہ پیاری سلیب دکھتی ہے مجھے پہاڑ پر کھڑی، آپ کو بھی نظر آتی ہوگی وہ سلیب، ہمیں آواز نہیں آئی؟ پہاڑ پر 3 سلیبیں ہیں اور ایک سلیب خدا یسوع مسیح کی ہے، وہ سلیب پیاری سلیب ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی حوالہ پڑھا لوکا کی انجیل 23 باب اور 34 ہے، اس میں لکھا ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر ہیں اور صلیب پر 2 اور ڈاکو بھی ہیں، اور یہ ایک بڑا کربناک منظر ہے، اور خداوند یسوع مسیح اپنی زبان مبارک سے پہلا الفاظ نکالتے ہیں، اور وہ پہلا الفاظ ہے اے باپ۔ اے باپ کر کے وہ اس کو شروع کرتے ہیں، اپنے جو درخواست ہے، جو اس کی پٹیشن ہے، جو ریکویسٹ ہے، وہ کر رہے ہیں کہ اے باپ، یعنی اپنے ازلی تعلق کو وہ دنیا کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں۔ جو اس کا دنیا کے جو تعلق بیٹے کا اور باپ کا تھا، وہ صلیب پر اے باپ کر کے اسے ظاہر کر رہے ہیں دنیا کے سامنے، اور بتانا چاہتے ہیں کہ میں تیرا بیٹا ہوں، اور میں نے اپنا وہ سب کام جو مجھے سونپا گیا تھا وہ میں نے مکمل کر دیا۔ لیکن اس کے بعد ایک ریکویسٹ خداوند کے سامنے رکھتے ہیں، اپنے باپ کے سامنے ایک ریکویسٹ ہے جو وہ رکھتے ہیں، اور وہ ریکویسٹ ہے کہ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اے باپ انہیں معاف کر، یعنی بات ہو رہی ہے معافی کی۔ تو جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تھے تو وہ خود معاف کیا کرتے تھے، آج وہ باپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ جب وہ دنیا میں تھے تو مریض ان کے پاس آتے اور پھر ان کو وہ کہتے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، یعنی ان کو اختیار تھا گناہ معاف کرنے کا، اور فقی اور فریسی اس بات کے لیے وہ خفا ہوتے تھے کہ یہ انسان ہوتے ہوئے، اور بات بھی صحیح تھی کہ اختیار صرف خدا کے پاس تھا معافی کا، لیکن یہ انسان ہوتے ہوئے کیسے کہتا ہے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے؟ میرے عزیزوں، یہ تعلق جو اس کے ساتھ ازل سے تھا وہ اس صلیب پر دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے کہ اور ریکویسٹ کر رہا ہے کہ ان کے گناہ معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ سو میرے عزیزوں، کیسے پتہ چل سکتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جا تیرے گناہ معاف؟ ہم جانتے ہیں کہ ایک مفلوج کو جب خداوند کے سامنے لایا گیا، اوپر سے اس کی چھت کو پھاڑ کر جب نیچے اتارا گیا، تو یہ ان کا ایمان تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کو کچھ ایسی بات نہیں کی، اور صرف یہی کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ کیسے ہمیں پتا چلا کہ واقعی گناہ معاف ہو گئے؟ کیونکہ وہ مفلوج اٹھا اور اس نے اپنی چارپائی اٹھائی اور وہ چلنے لگا۔ اس سے پہلے وہ چل نہیں سکتا تھا، اس سے پہلے وہ مفلوجی کا ایک دور اپنا وقت گزارا تھا، چارپائی پہ رہتا تھا، لیکن جب اس کے گناہ معاف ہو گئے تو وہ چلنے پھرنے لگا۔ ہاللویا۔ سو میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح کو اختیار تھا، لیکن اس وقت خداوند یسوع مسیح ایک ازلی تعلق جو باپ کے ساتھ ہے وہ دنیا کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ تعلق ظاہر کرتے ہیں کہ میں باپ سے نکلا ہوں اور دنیا میں آیا ہوں۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ سو یہ تعلق اس کا ازل سے تھا، اور یوحنا رسول یہ کہتا ہے کہ میں باپ سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں۔ سو میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح اس وقت صلیب پر ہے،
और कहते हैं कि इन्हें माफ कर। किन को माफ कर? कौन है जिससे वो कह रहे हैं कि माफ कर? हम सबको। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और पीछे जाकर हम गethsemane बाग से शुरू करें, तो गethsemane बाग से खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो गिरफ्तार किया गया। हम देखते हैं कि गethsemane बाग से लेकर फिर उनके साथ परेशानियां, मुश्किलें आ गई है। कोई उनको लान तान कर रहा है, कोई उनको कांटों का ताज बना रहा है, कोई उनकी दाढ़ी नोच रहा है और कोई उनको जलील कर रहा है। ये सारी मुश्किलें, परेशानियां ये हम देखते हैं कि रात ही में उनको अदालतों का सामना करना पड़ा और लोग उनको मार रहे हैं, लोग उनको लान तान कर रहे हैं, हंस रहे हैं उसके ऊपर। ये सारी बातें हैं। कौन? वो लोग जो जानते ही नहीं थे कि उनकी जरूरत क्या है। उन्हें पता ही नहीं था कि हम ये क्या कर रहे हैं, हम किसके साथ, हम किसके शरीक हैं। मसलूबियत का जो मंजर है उसमें वो सारे के सारे शरीक हैं। खुदावंद यीशु मसीह को जब उस पहाड़ी पर लाया गया तो रास्ते में एक मुश्किल थी, एक कठिन मुश्किल थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने सारा ये सफर हंसते हंसते तय कर लिया। ये सारी मुश्किलों के पीछे एक शख्सियत थी और वो शैतान था जो ये सारी प्लानिंग कर चुका था, हर किसी के दिल में समा चुका था और जो होता उस पर ये मुश्किल करता। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह हंस हंस के ये सारा वक्त गुजार दिया और सलीब तक पहुंच गए। स्कॉलर्स कहते हैं, बल्कि आलम दीन यही कहते हैं कि शैतान खुदावंद यीशु मसीह को गethsemane बाग में ही मार देना चाहता था। शैतान नहीं चाहता था कि वो सलीब पर जाए और मेरे और आपके लिए फिदिया दे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने सारा सफर तय किया और जब वो सलीब पर है और कहते हैं कि आए बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। वो सभी लोग जिनके लिए उन्हें अपनी जरूरत का मालूम ही नहीं था, पता ही नहीं था। अगर उनको अपनी जरूरत का पता होता तो वो ऐसे काम ना करते। अपने गुनाहों में, बदकारियों में और सारी बदियों में वो अपनी बदियों के पीछे पीछे चल रहे हैं। और मेरे अजीजों, वो जानते हैं कि अगर ये कौन है जिसके हम शरीक हैं, जिसके कत्ल में हम शरीक हैं, सो वो ऐसा ना करते। लेकिन उन्हें अपनी जरूरत का ही नहीं पता था। खुदावंद यीशु मसीह हमारी जरूरतों को जानता है। खुदावंद यीशु मसीह जानता है कि हमें किन चीजों की जरूरत है। और वो लोग जो खुदावंद को सता रहे थे, वो लोग जो खुदावंद को लान तान कर रहे थे, वो लोग जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कांटों का ताज पहना दिया, और वो लोग जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में 9-9 इंच के, पांव में 9-9 इंच के कील ठोंक दिए, वो जानते थे कि इन्हें किस चीज की जरूरत है। क्योंकि वो खुदा से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो कुछ भी ये कर रहे हैं, जो कुछ भी इन्होंने आज मेरे साथ किया है, इन्हें पता ही नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। अगर इनको पता होता तो ये कभी नहीं करते। सो मेरे अजीजों, उनकी जरूरत ये थी कि वो उस हस्ती को, उस शख्स को जानते, उस कुदरत को जानते कि जो इस सलीब पर आज अपनी जान दे रही है। अगर वो जानते तो कभी ऐसा ना करते। लेकिन ये सब कुछ होने दिया। ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू द बाइबल था। ये कोई हादसा नहीं था, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू द बाइबल हुआ। सो मेरे अजीजों, पहला कलमा माफी का कलमा है, शिफात का कलमा है। वो आज भी मेरे और आपके लिए शिफात करता है। वो आज भी मेरे और आपके लिए जब हम गुनाह करते हैं तो माफ कर देता है। और हमें वो क्या सिखाता है? हमें वो माफी ही मांगना सिखाता है कि हम हर हाल में उससे माफी मांगे। हम हर हाल में हम गुनाहगार हैं। सभी ने गुनाह किया, सबको जरूरत है। ज़बूर में 51 ज़बूर में बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी मां। मैंने बदी में सूरत पकड़ी और गुनाह की हालत में पैदा हुआ है। अगर हम गुनाह की हालत में पैदा हुए हैं तो हमें तौबा की जरूरत है, हमें माफी की जरूरत है। और माफ करने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। सो वो हमें आज भी माफ करता है। सो मेरे अजीजों, अगर अब तक हमने तौबा की हम मुनादी करते हैं, तौबा की बात करते हैं, लोग नाराज हो जाते हैं।
लोग नाराज हो जाते हैं। मैं बड़ा खुश नसीब हूं, अगर कोई शख्स मुझे ये कायल नहीं करता तो शायद मैं आज यहाँ पर खड़ा ना होता। मैं मुनादी नहीं करता। मुझे किसी ने कहा कि तौबा करना जरूरी है, मुझे किसी खादम ने कहा और मैंने तौबा की। और मैं जैसे कह रहे थे कि आज बड़ा खुश बड़ा अच्छा दिन है, बड़ा यानी आज के दिन खुदा यीशु मसीह को सलीब पर दिया गया। सो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैंने आज से कोई 25 साल 30 साल पहले गुड फ्राइडे के दिन ही खुदा को कबूल किया था। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं, मैंने गुड फ्राइडे वाले दिन खुदा को कबूल किया। मेरे चीज़ों अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब तक हमने खुदा को कुछ नहीं दिया, अब तक हमने कुछ नहीं पाया, अगर आपने इससे पहले अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं दी, सो मेरे अजीजों उसके हाथ खुले हुए हैं। आज से 2025 साल पहले उसने अपनी जिंदगी आपके लिए दी। अगर आप चाहते हैं कि इससे पहले आपने उसको अपना शख्सी निजात जिंदा कबूल नहीं किया, तो आज वक्त है कि अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दें। वो आपको अपने सीने से लगा देगा, अपने बेटियां बना देगा। ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।